हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन सेशन 6 ऑन ईमेल इंटरनेट एंड इट्स यूजेज, सर्च इंजन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स पे आज का आपका सेशन रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट? Windsurf, Charles Babbage, Mark Anderson or Charles Victor? So right answer is Windsurf. तो Windsurf आपका डेवलप किया था, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाई Windsurf, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज किसके फादर हैं? आपके कंप्यूटर के। ठीक है, next question is the process of trading goods over the internet is known as e-selling and buying, e-trading, e-finance, e-salesmanship. So your right answer is e-trading, e-commerce। एक ही बात है। ठीक है, e-trading बोले, e-commerce बोले, उसमें आपकी क्या आ जाती है? जो भी आप इंटरनेट के थ्रू गुड्स की सेल्स करते हो, बाई करते हो, किसी चीज को सेल करते हो, वो सब आपका e-trading में आ जाता है। Then your next question is web pages are saved in which of the following format? HTTP, HTML, doc or URL? So your right answer is HTML। HTML आपका सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होता है, आपके वेब पेजेस को राइट करने के लिए। ठीक है, वेब पेजेस के रिलेटेड कुछ भी आएगा लैंग्वेज के केस में तो आप HTML को टिक मार्क करेंगे। Now next question is the word internet is derived from 2 words, interface and network, intercommunication and network, internal and network or interconnection and network? So right answer is interconnection and networks। और definition हो जाएगी इसकी, internet is interconnection of networks। इंटरनेट आया आपका इंटरकनेक्शन से और नेटवर्क्स आया, नेट आया आपका नेटवर्क से। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट का काम क्या है? ये आपके नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है। Which of the following is an internet browser? Windows Explorer, www.google.com, Internet Explorer और Taskbar? So right answer is Internet Explorer। Which of the following internet protocols allows us to access the data over the World Wide Web? DNS, SNMP, HTTP, FTP? So right answer is HTTP। ठीक है, टेक्स्ट के रिलेटेड आपका जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which of the following is an information space on the internet where documents and other resources are stored? World Wide Web, protocol, web browser, file explorer? So right answer is World Wide Web। Who is the father of World Wide Web? कोई एक बच्चा बताओ खड़े होके। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है? टॉम। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये भी, आपके www के फादर हैं टिम बर्नर्स-ली। The internet, sometimes called simply net, is a huge network of networks that joins computers from all across the world, an internal communication system, a communication system for the government, or all of the above? So right answer is a huge network of networks that joins computers from all across the world। Basically net क्या होता है? जाल। ठीक है, तो ये आपका ऐसा जाल है नेटवर्क्स का जो वेरियस कंप्यूटर्स को, वेरियस सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है, तभी इसको नेट भी बोला जाता है।
Now next question is, the concept of the internet was originated in 1970, 1969, 1971 or 1981? So right answer is 1969. 1969 में पहली बार आपके लिए इंटरनेट का फर्स्ट मॉडल एस्टैब्लिश हुआ था। कौन सा था आपका फर्स्ट मॉडल इंटरनेट का? राइट, ARPANET। ठीक है। Origin of the internet was developed from the concept of Microsoft, IBM, ARPANET और वेब। तो अभी आपने देखा आपका इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसका पहला मॉडल जो डेवलप किया गया था वो था ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। In 1969, ARPANET was developed by which country? France, England, USA और रशिया? So right answer is USA। तो आपका ARPANET कहाँ पे डेवलप किया गया था, किस कंट्री में? USA में। ठीक है, तीन बातें आपको याद रखनी है कि आपका पहला मॉडल था ARPANET, उसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फिर याद रखेंगे कि वो किस ईयर में डेवलप किया गया था 1969 और किस कंट्री ने किया था, USA। What is the major use of internet? Sharing data and information, browsing web pages, sending and receiving emails, social networking or all of the above? So right answer is all of the above. Each computer on a network is recognized by a unique IP address, HTTP, HTTPS और www। ठीक है, तो आपका हर एक कंप्यूटर की पहचान कहां से होती है, उसके आईपी एड्रेस से। मींस हर एक कंप्यूटर का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा। HTTP, HTTPS और www, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। वेरी गुड, ये भी पूछा जाता है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। What is the full form of HTML? High Transfer Machine Language, High Transmission Markup Language, Hypertext Markup Language, Hypermedia Markup Language. So HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used to write a set of rules followed by each computer present on a network is called Web HTTP Domain Protocol. So right answer is protocol। तो प्रोटोकॉल आपके ऐसे रूल्स होते हैं जो इंटरनेट फॉलो करता है किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने से पहले। अगर वो डाटा है तो वो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, अगर कोई फाइल शेयर हो रही है तो FTP करेगा, कोई ईमेल सेंड हो रहा है तो STMP करेगा। ठीक है, SMTP, sorry। Inventor of www is Bill Gates, Lian Fiong, Tim Berners-Lee और Tom Berners-Lee? So right answer is Tim Berners-Lee। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, टीम, टिमोथी पूरा नाम था इनका, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में टीम बोलते। Which of the following statement is not correct about IP address? रीड करिए इसको और बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें। So your right answer is all are correct। ठीक है, सभी सही हैं। आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर के लिए यूनिक होगा, अभी बताया मैंने। देन आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है 0 to 255 होती है। ठीक है, इसके बीच में आपके 4 ग्रुप्स में आपका क्या लिखा जाता है, आईपी एड्रेस लिखा जाता है, और हर एक ग्रुप में वैल्यू 0 to 255 ही हो सकती है। देन ईमेल सेंड करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है, और ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर की जरूरत होगी तो उसका एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। Which device is required to establish an interconnection
internet connection on a computer, modem, router, ISP, both A and B. सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, बट आपसे डिवाइस पूछी गई है, ठीक है, तो डिवाइस में आपके बोथ ए एंड बी आएंगे, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैटर करता है, ठीक है। A device that is used to convert digital signals into analog signals and vice versa is called keyboard, router, modem or light pen. Or so right answer is modem. Why? Because modem stands for modulation and देखिए मॉड्यूलेशन का काम होता है आपका डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, देन डिमॉड्यूलेशन में आपका आ जाता है एनालॉग सिग्नल वापस डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। दो काम इसके इसलिए बताए जाते हैं, मॉड्यूलेशन आधा पार्ट है, डिमॉड्यूलेशन इसका सेकंड पार्ट है। पहले में ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में क्यों कन्वर्ट करता है, ताकि वो फोन लाइन से इजिली ट्रांसमिट हो सके। जब वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, जब वो दूसरे सिस्टम के पास पहुंचने वाला होता है, वो वापस एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल वाली लैंग्वेज समझता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज 0-1। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? तो ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करने के एक जरिया होते हैं, ठीक है। अब आप कैसे इंटरनेट यूज करते हो? बिना सिम के नहीं करते, बट सिम किस कंपनी की है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, ये सब जिनकी भी आप एक इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, वो सब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। In HTTPS, S means secure. अब HTTP और HTTPS का डिफरेंस बताओ मुझे। Now your next question is, which device is required to connect multiple computers on the same internet network? Modem, hotspot, IAP, router. So right answer is router. A collection of publicly accessible interlinked web pages that share a common domain name is called website, web content, hypertext search engine. So your right answer is website. Website क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट के अंदर आप क्या करते हो, जैसे अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलते हो तो वहां आपको क्या मिलता है? सेम किस्म के वेब पेजेस मिलते हैं जो सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट के रिलेटेड होते हैं, राइट। तो वो आ जाती है आपकी एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, क्योंकि वहां पे आपको हर पेज जो है, हर एक वेब पेज उसी के रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं। Which of the following domain extension is not abbreviated for the country? .in, .us, .com, .uk. So right answer is com. .com. .com आपका किसके लिए यूज होता है? .com किसकी एक्सटेंशन है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जो साइट्स होती हैं उनमें आगे .com लगता है, ठीक है। कोई इंडिया गवर्नमेंट की साइट है उसमें .in लगेगा, ठीक है, समझ आए। वैसे ही जैसे US की होगी, UK की होगी, तो उनके आगे वो एक्सटेंशन लगेगा।
a protocol in the URL. This is www, https.com, all of the above. ये जो आपका URL है, ये कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है इनमें से? All of the above. So right answer is HTTPS. ये तो ठीक है, आपको आंसर आता है, अदरवाइज इसमें तो कोई और प्रोटोकॉल ही नहीं है HTTPS के अलावा, ठीक है। What does www stand for? तो ये तो अभी तक सबको आ जाना चाहिए, it stands for वर्ल्ड वाइड वेब। What is वर्ल्ड वाइड वेब? क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? जितनी भी चीजें आप नेट के थ्रू सर्च करते हैं उसका स्टोर आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। जो भी आप चीज ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, वो सारा उसका स्टोर आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वहां से आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चीज प्रोवाइड की जाती है एज वेब पेजेस के थ्रू। In which year the Information Technology Act was enacted in India? This is an important question. 2005, 1980, 2000 और 1990? आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब इनेक्ट किया गया था इंडिया में? So right answer is 2000. आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इनेक्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। Which of the following is responsible for routing traffic from one to another network? Modem, hub, network router, network switch. So right answer is नेटवर्क रूटर। तो रूटर का क्या काम होता है? ये ट्रैफिक को रूट करता है, साथ साथ में जो भी डाटा होता है उसको प्रॉपर आईपी एड्रेस पे भेजने का काम आपका रूटर करता है। Dash is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher level so that signal can cover longer distance. Modulator, oscillator, repeater or amplifier. So right answer is repeater. बेसिकली रिपीटर का क्या काम होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज योर वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे अपना जो भी सिस्टम यूज कर रहा है, दूसरा यहाँ कर रहा है, ठीक है। जो डाटा की क्वालिटी स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, जब डाटा मूव करे। तो इसीलिए सेंटर में एक रिपीटर का यूज किया जाता है ताकि जो भी डाटा की फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है वो भी सेम एम्पलीट्यूड आगे ट्रांसफर हो, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ रिपीटर। अ कोड ऑफ वेब पेज हैज बीन रिटन बाय यूजिंग डैश। तो अभी तक ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए कि आपके वेब पेजेस की जब बात होती है तो वो किस में लिखे होते हैं? हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज और HTML। Standard protocol for the internet is TCP/IP, Java, HTML, Flash और none of these. ठीक है, तो आपने इंटरनेट में अभी तक बहुत सारे प्रोटोकॉल पढ़े लाइक TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, ये सब आपके क्या है? प्रोटोकॉल्स है। बट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका कौन सा है? TCP/IP, which stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol, which is used to, क्या काम होता है TCP/IP का? TCP का काम होता है आपके डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है, उन पैकेट्स को प्रॉपर रूट प्रोवाइड करना जहां उनको भेजा जाएगा, ठीक है।
Each IP packet must contain only source address, only destination address, source and destination address, or source or destination address. और so your right answer is source and destination address. Source भी और destination address भी. Which protocol provides email facility among different hosts? SMTP, Telnet, FTP, SNMP. None of these. ईमेल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, बट वो रिसीविंग पे था. अभी आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका ईमेल कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है. और फर्स्ट, so your right answer is SMTP, which stands for ठीक है. तो बेसिकली आपका ईमेल दो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, तीन. SMTP फॉर सेंडिंग ईमेल्स, POP3 और IMAP फॉर रिसीविंग ईमेल्स. ठीक है. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो आपका ईमेल पूरे प्रोसेस में तीन प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, जिनका नाम है SMTP, देन POP3, देन IMAP. ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सेंडिंग पे आए, चाहे वो रिसीविंग पे आए, चाहे ये जनरल आए कि कौन कौन से फॉलो करता है. ठीक है. तो SMTP आपका सेंडिंग के लिए यूज होता है. जब भी आपको ईमेल सेंड करते हैं तो सेंडिंग में जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो होता है SMTP. देन POP3 और IMP आपके रिसीविंग में फॉलो होते हैं. ठीक है. तो ये आप याद रखेंगे. The first political party of India which created its own website on internet is भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी. तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर इज भारतीय जनता पार्टी, BJP. ठीक है. तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनाई थी. Now moving on to next. In HTML, tags consist of keywords enclosed within flower brackets, angular brackets, parentheses और square brackets. ठीक है. तो अभी तक आपने HTML के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. अब आपने पढ़ना है कि जो टैग्स होते हैं HTML में, बेसिक जो कोडिंग होती है, जो कमांड आप HTML में देते हैं, वो किन किन सिंबल्स के बीच में देते हैं. सो राइट आंसर इज एंगुलर ब्रैकेट. कोई भी कमांड आप देंगे तो कमांड आप सेंटर में लिखेंगे और ऐसे साइड पे उसको ब्रैकेट्स लगाएंगे. तो कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती हैं? एंगुलर. A website is collection of graphics, algorithms, charts, programs, web pages. ठीक है. Web pages. A browser is a tool for creating a database, software program to view web pages on the internet, printing device, software program to delete a folder. So right answer is it is a software program to view web pages on the internet. तो ब्राउजर का यूज आप किस लिए करते हैं? किसी भी चीज को सर्च करने के लिए. ठीक है. फिर आपको वो किसके थ्रू डिस्प्ले होती है? वेब पेजेस के थ्रू. Then next question is the software that allows users to surf the internet is called an search engine, internet service provider, multimedia application, browser. So right answer is browser. ठीक है. ब्राउजर और सर्च इंजन में ये होता है, क्या बताया गया आपसे? सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर, यूजर को जो अलाउ करता है ऐसा सॉफ्टवेयर. तो यूजर किस पे सर्च करता है चीज? ब्राउजर पे. तो यूजर का काम किसके साथ है भाई? ब्राउजर
ब्राउजर के साथ, वो अपनी चीज, अपनी डिमांड किस पे रखेगा, ब्राउजर पे। देन ब्राउजर फर्दर क्या करता है, अपने सर्च इंजन को लगाता है वो चीज को कलेक्ट करने में जो आपने डिमांड की है। ठीक है, सर्च इंजन क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है और वेब पेजेस के थ्रू आपको डिस्प्ले कर। तो ब्राउजर का काम यूजर से है, आपका काम सर्च इंजन से नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउजर वेब पेजेस को डिस्प्ले करने का काम करता है। देखिए मेन डिफरेंस है, ब्राउजर इज टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड सर्च इंजन का काम है टू फाइंड वेब पेजेस। अब फर्क समझ आया? URL identifies the location of a specific web page on the internet. Here URL stands for Uniform Read Locator, Uniform Resource Locator, Unicode Research Location, United Research Locator. ठीक है, URL आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ कल है, ठीक किया है कि नहीं? The last three letters of the domain name describe the type of organization, connectivity, server, protocol. So right answer is organization. तो last three words जिसको हम extension भी बोलते हैं, like your .com, .in, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंट्री को डिनोट करते हैं। An educational institution would generally have the following in its domain name: .org, .edu, .inst, .com or .sch. So a right answer is edu. ठीक है, तो ये कुछ आपकी एक्सटेंशंस हैं जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, जैसे एजुकेशनल के लिए edu, ऑर्गेनाइजेशन के लिए org, इंस्टीट्यूशन के लिए inst, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो .com, ऐसे ऐसे, स्कूल के लिए। A stored link to a web page in order to have a quick and easy access to is later is called WP link field. None of these length bookmark. So your right answer is bookmark. जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, आपको वो पसंद आता है, तो आप अपने फ्यूचर यूज के लिए, ताकि आपको फिर से ये चीज सर्च ना करनी पड़े, इजीली आप उसको एक्सेस कर सके, आप उसको स्टार मार्क करते हैं और उसी को कहते हैं बुक मार्क। इस किस्म का होता है ना, उसका आइकन बना हुआ, दिस इज योर बुक मार्क। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ HTML documents, graphic files, log key, all of these, none of these. None of these भी है, all of these भी है। बताइए वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? ठीक है, तो वेबसाइट्स किसकी कलेक्शन है आपकी? बेसिकली वेब पेजेस की। ठीक है, अब वेब पेजेस कहीं दिया हुआ है नहीं, बट वेब पेजेस क्या होते हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको उस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा HTML डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एट, अब इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994 और 7 अगस्त 1996 और नन ऑफ दिस आ सकता है। आपका सही आंसर है इसमें 15 अगस्त 1995। ठीक है, तो 1995 में इंडिया में आपका इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। Which of these is not a medium for email? Intranet, paper, extranet or internet? So right answer is paper. भाई इंटरनेट से बेसिकली यहाँ पे पेपर सबको पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत है, नॉट पढ़ना है, सीधा पढ़ोगे। बीच ऑफ दिस इज नॉट अ मीडियम फॉर ईमेल, इंटरनेट। आप तो इंटरनेट भी नहीं देखोगे, एक्स्ट्रानेट भी नहीं देखोगे, तो नॉट है
इंटरनेट की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनेट की दो टाइप्स होती है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट होता है कोई बाहर की प्राइवेट कंपनी जो अपना नेट दे रही है। इंट्रानेट होता है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर का नेट जो सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों किस्म से आप ईमेल भेज सकते हो। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, बिल गेट्स, लिंकन गैलिटोबेरी, टिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन और नॉन ऑफ दीज? बिल गेट्स। सो राइट आंसर इज रे टॉमलिंसन। इन्हीं को ही आपका फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। फर्स्ट ईमेल आपका कब सेंड हुआ था? 1971 में। What protocol is most typically used to receive emails from a server to a client device? STP, FTP, HTTP, POP3? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और रिस्पॉन्स करो। So your right answer is POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। मैंने बताया रिसीविंग में दो ही प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, POP3 और IMAP। IMAP stands for Internet Message Access Protocol. POP3 stands for Post Office Protocol. What does an email client drafts folder serve as? Archive deleted emails, organize emails into folders, save drafts of unsent emails और store received emails. ठीक है, तो बेसिकली ईमेल की बात करें, किसी और ऐप की भी बात करें, तो ड्राफ्ट में आपका कौन सा मैसेज स्टोर होता है जो आप आधा छोड़ देते हो। ठीक है, सेव ड्राफ्ट्स ऑफ अनसेंट ईमेल्स, जैसे कोई आपने बनाया मेल लेकिन उसको सेंड नहीं किया है तो वो आपका ड्राफ्ट्स में चला जाएगा। What is the use of carbon copy? Recipients are invisible to all of the other recipients of the message in CC. Recipients are visible to all of the other recipients of the message in CC. Recipients are invisible to only one recipient of the message in CC or none of the above. पूछा जाता है। CC stands for carbon copy. तो बेसिकली जब भी आप ईमेल टाइप करने जाते हैं तो वहां आपके पास सबसे पहले होता है फ्रॉम टू। ठीक है, फ्रॉम में आप अपना लिखते हैं कि कौन भेज रहा है, टू में लिखते हैं आप रेसिपिएंट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस। देन आपके पास आता है CC, मींस अगर आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स को ईमेल भेज रहे हैं तो CC में आप उन लोगों का नाम मेंशन करते हैं जिनका आप चाहते हैं कि उनको पता चले कि किस किस को और ईमेल भेजी गई है। मतलब कि जिस जिस रेसिपिएंट को मेल मिलेगी उसको साथ में यह भी पता चल जाएगा कि किस किस को और मेल सेम मेल भेजी गई है। पर BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब जो कॉपीज आगे रेसिपिएंट्स को भेजी गई हैं किसी भी रेसिपिएंट को यह पता नहीं चलेगा कि ये कॉपी और किस किस को भेजी गई है। ठीक है, तो BCC में आप उन एड्रेसेस को मेंशन करते हैं जिनका आप चाहते हैं कि इनको ये ना पता चले कि और किस किस को इसकी डिटेलिंग भेजी गई है। सो CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। So your right answer is recipients are visible to all of other recipients of the message in carbon copy. Means जो भी आपका कोई रेसिपिएंट है वो विजिबल है, उसको दिख जाएगा कि कॉपी किस किस को और भेजी गई है। ठीक है, Which of the following icon is used to add an attachment to an email? Stationery icon, paperclip icon, GIF icon और emoji icon? बताइए। ठीक है, तो जब भी आप कोई अटैचमेंट फाइल उसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं? इस किस्म का एक। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकॉन। ठीक है, सो राइट आंसर इज पेपर क्लिप आइकॉन। क्योंकि पेपर क्लिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप पेजेस पढ़ रहे हैं कहीं तो उसको क्लिपिंग के लिए भी आप ऐसा जैसा कोई यूज करते हैं।
Which of the following is mandatory for sending an email? Body, sender mail ID, attachment or subject? So your right answer is sender mail ID. इसका कोई काम नहीं है जब तक कोई आईडी नहीं है आपके पास। सब्जेक्ट भी है, अटैचमेंट भी है, सब बॉडी भी है, बट अगर आपको आईडी नहीं है, किसी को भेजना ही नहीं है, तो ईमेल का क्या पर्पस रह गया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आईडी होती है, फिर आप उसको मेल भेजो, अटैचमेंट भेजो, फाइल भेजो, इमेज भेजो, कोई डॉक्यूमेंट भेजो, दैट्स योर चॉइस। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस? डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, यूजर्स नेम फॉलोड बाय पोस्टल एड्रेस, और यूजर्स नेम फॉलोड बाय स्ट्रीट एड्रेस। तो स्ट्रीट एड्रेस तो आपका हो नहीं सकता, पोस्टल एड्रेस ईमेल में हो नहीं सकता, तो अब आपको ये बताना है पहले डोमेन नेम होता है फिर यूजर नेम, पहले यूजर नेम होता है फिर डोमेन नेम। तो ईमेल सभी लिखते हो, सबका ईमेल एड्रेस है, तो पहले क्या लिखते हो? अपना नाम लिखते हो ना, www ऐसे, फॉर एग्जांपल xyz@gmail। तो xyz में आप अपना यूजर नेम लिखते हो, आप अपना नाम रखो, कोई इंस्टीट्यूशन है वो अपना नाम रखे, जो भी रखे, तो पहले आपका यूजर नेम आता है, फिर आपका डोमेन नेम आता है। डोमेन नेम में आता है जो आपको वो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर गूगल का मेल एड्रेस बनाया आपने तो जीमेल, याहू में बनाया तो yahoo.com। ठीक है, व्हाट इज ईमेल? Method of exchanging messages via electronic message devices, speed message transfer to location, musical messaging service, or none of these? तो म्यूजिकल क्या सर्विस? ईमेल का म्यूजिकल से कोई कनेक्शन नहीं। स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, तो ईमेल क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म ही है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ऐसा मैसेज जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भेजते हैं उसको आप ईमेल कहते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज, तो एक वेबसाइट का एड्रेस उसको हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं या यूआरएल भी बोलते हैं, जो हमें उस एड्रेस की लोकेशन बताता है। ठीक है, जब भी आपको कोई वेबसाइट से कॉपी करनी होती है तो आप उसका यूआरएल कॉपी करते हैं बेसिकली। ठीक है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ दीज इज करेक्ट ईमेल एड्रेस? बताइए, अभी पढ़ा ना? हाँ, तो इसमें आपका आ जाएगा डी, यूजर नेम, देन @ देन वेबसाइट, देन .com। ठीक है, अच्छे से ऑप्शंस देखने होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं ये। @ in an email address is used to dash separate username from ISP, create password for email, add strength to email, or none of these? @ का ईमेल में क्या काम है? ठीक है, तो @ का क्या काम होता है? यूजर नेम को ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जो आपको मेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जैसे जीमेल, याहू, उन दोनों को सेपरेट करने का काम यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने का काम आपका @ साइन करता है। व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? 10 MB, 15 MB, 25 MB, 40 MB। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अगर ईमेल से आप कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं, मैसेज के साथ कोई अटैच कर रहे हैं फाइल, तो कितनी साइज की आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं? सो राइट आंसर इज 25। ठीक है, तो आप अपनी ईमेल के साथ 25 MB तक की फाइल अटैच कर सकते हैं। Which of the following is a search engine? Google, Gmail, Yahoo Mail, Linux। ठीक है, तो Google आपका क्या है? सर्च इंजन है। Gmail आपका एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, Yahoo Mail भी। Linux आपका क्या है? कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज होता था। ठीक है, A software program we can use to find
sites, web pages and internet files. Browser, operating system, search engine, word web search. The right answer is ब्राउजर. मीन्स ब्राउजर पे को आप यूज करते हैं किसके लिए? वेब पेजेस को सर्च करने के लिए, कोई फाइल को सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए. Which one of the following is not a search engine? राइट. क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है, गूगल आपका सर्च इंजन है. ठीक है, गूगल, क्रोम गूगल का ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजन है. बिंग, याहू, ये सब आपके सर्च इंजन है. इंपॉर्टेंट सर्च इंजन भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, बिंग सर्च इंजन इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. राइट. ठीक है, तो बिंग किसका सर्च इंजन है, किस कंपनी ने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट. अब इंपॉर्टेंट सर्च इंजन आपको कुछ पता होने चाहिए, लाइक गूगल, बिंग, बाइडू, डक डक गो, ask.com, यूट्यूब, अमेजन, सब आपके क्या है? सर्च इंजन हैं. देखिए कंफ्यूज क्यों हुए आप? क्योंकि सर्च इंजन में सिर्फ टेक्सचुअल डाटा सर्च करने वाले इंजन नहीं आते. वीडियोस आप कहीं से सर्च कर रहे हैं, लाइक योर यूट्यूब्स, अमेजन, आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो ये सब आपके क्या है? सर्च इंजन है. अभी टॉप मोस्ट सर्च इंजन जो यूज किया जाता है आपका गूगल है, नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट बिंग एंड थर्ड इज यूट्यूब. ठीक है, टॉप थ्री बताए मैंने. बाइडू, BAIDU. So that's all. Thank you.